Hello students, my name is Ankur Gurwal and I am teaching engineering mechanics and this is my 7th lecture. Today we are going to study a method of section for plane trusses. So let's proceed. Before starting the method of section, let's see what we have done in the method of joint. Suppose we have a truss. One second. We have this truss like this. There were the load mounted and these were the support, right? So what we will do in this, we will consider a single joint, maybe here, and we consider this joint to be at equilibrium. ठीक है, तो इसी जॉइंट पे इक्विलिब्रियम मान के हमने या तो आपके वर्टिकल फोर्स बैलेंस किए या फिर हमने मोमेंट अप्लाई किया कहीं भी या फिर हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस किए. ठीक है, तो हमने ये काम किया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने माउंट कर दी एट एनी जॉइंट. ठीक है, सो हमने क्या करा, this we have used in method of section joint. But here in the method of section हमें क्या करना पड़ेगा, we will take one section. ठीक है, first we have to cut the section. आपको पहले सेक्शन काटना पड़ेगा. लाइक अभी मैंने इसको कंसिडर करते हुए सेक्शन काट दिया. ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट है लेफ्ट साइड वाला, या तो हम ये कंसिडर करेंगे that this portion is at equilibrium, सारा है ये आपका पूरा का पूरा ट्रस जो है वो इक्विलिब्रियम पे है. बट फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे एंड इन दोनों में से कोई भी एक सेक्शन लेंगे जिसको मानेंगे इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, we will see this in detail in questions. Okay, so after this just have the little view that what should be the procedure to solve the question by this method. First we have to calculate the reactions at support, right? But not each and every question we have to required to use this first step, because suppose I have some example like this. And here is the force, right? This is the question. Okay, there is a W force applied. So if I take the section like this, yeah, like this section 1 and I consider the top one, this portion I consider. If I consider this portion, then I won't be using this reaction. Reaction. I'll simply do the quotient with this W. ठीक है, so if question says after, क्योंकि आप जब सेक्शन चूज कर लोगे कि मेरे को लेफ्ट लेना, राइट लेना है, टॉप वाला लेना है, बॉटम वाला लेना है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके सेक्शन के अंदर आपकी रिएक्शंस आती हैं, then you have to calculate the reaction, otherwise it's not necessary, right? Okay, so first thing, find the reaction at support if required according to your section, and then cut the member under the consideration by the section 1 जैसे हमने कंसिडर किया सेक्शन, ये आपका सेक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 सेक्शन है. ठीक है, एंड कंसिडर द इक्विलिब्रियम आइदर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन. सेक्शन के लेफ्ट साइड को हमने मान लिया दिस सेक्शन एज द इक्विलिब्रियम और द राइट साइड पार्ट ऑफ द सेक्शन इज टू बी एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, और जैसे हमने इसको माना कि ये इक्विलिब्रियम पे, सो वी कैन अप्लाई द समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज टू बी 0, and summation of moment of force at any point equals to 0. जो कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम की है हम इसमें माउंट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. Okay, there are some rules or like highlighting that how you can and where you can cut the members. Okay, so where and which member are to be cut, let's see now. Okay, so let me take one example. Okay, we have taken one example here. Now let's read the steps. So first, cut the member such that entire truss is divided into the separate parts. ठीक है, तो हमें जो सेक्शन लेना है, राइट, वो सेक्शन इस टाइप से होना चाहिए
कि या तो मतलब इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर दे इन 2 पार्ट्स, या तो मैं ये ले लूं, या फिर मैं ये ले सकता हूँ, या फिर ये ले लूंगा, या फिर ये ले लूंगा, कुछ भी, मतलब कैसे भी मैं कसो कट करूं, बट दैट कटिंग should divide the whole truss in 2 parts. Okay, so this will be our first thing, right? And then let's read the second one. What's that? Preferably do not cut more than 3 member of trusses. ठीक है, जब भी हम इसको कट कर रहे हैं ट्रस को, तो ये ध्यान में रखें कि आप जब मेंबर काट रहे हैं तो 3 से ज्यादा मेंबर नहीं कटो। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये लिया, चलेगा, अभी मैंने शायद ये लिया तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर को कट कर रहा हूँ। आई एम कटिंग हियर 5 मेंबर्स। ठीक है, बट वो बात कर रहा है प्रेफरेबली, आप ऐसा कर भी सकते हो, बट ऑन सम कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? ओके, बिकॉज इफ यू कट दिस वी हैव 3 इक्वेशन बाय अप्लाइंग द इक्विवेलेंट कंडीशन। क्योंकि देखो, आप जब कट कर लोगे, कट करने के बाद क्या होगा, आप उस सेक्शन पे क्या लगाओगे, इक्विवेलेंट कंडीशन लगाओगे। वो क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, एंड मूवमेंट इन एनी पॉइंट और एनी जॉइंट दैट शुड बी 0। ठीक है, ये कंडीशन लगाओगे आप, तो ये कंडीशन आप पे 3 है। ठीक है, तो प्रिफरेबली यहाँ बात करी जा रही है कि आप जो भी सेक्शन ले रहे हैं, जो भी आप कटिंग कर रहे हैं, सेक्शन ले रहे हैं, वन सेक्शन ले रहे हैं, तो वो वन सेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि आपके वो 3 मेंबर को कट करे, 3 से ज्यादा नहीं करे, क्योंकि 3 से ज्यादा कट मेंबर कट करेगा तो 3 से ज्यादा अननोन फोर्स हो जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन 3 ही है। ओके, क्लियर? कभी कभी हम 4 भी ले सकते हैं, बट वो एक कंडीशन होगी, क्योंकि वहां पर जो अगर मेंबर बढ़ रहा होगा उसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब हमें अननोन्स नहीं पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, वी विल सी इन सम क्वेश्चन this kind of things. Okay, so what's the third is cut the members such that all the cutting member do not meet at a point. ठीक है, अब जैसे मैंने कटिंग करी, like this. If this member, if this members are meeting at a same point, तो मतलब ही क्या कट करने का? बिकॉज हमने ये काम कर चुके हैं, हम ये काम कर चुके हैं, हमने एक पॉइंट लिया था जिसपे हमने माउंट किया था ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स। ठीक है, तो मतलब अगर हम एक ही पॉइंट के सारे जो मेंबर्स को कट करते हैं, जो एक ही पॉइंट में मीट कर रहे हैं, दैट मींस ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, सो वी हैव टू फोकस दैट आल्सो कि जब हम कट कर रहे हैं तो दोस मेंबर आर टू बी सेपरेट, आर टू हैव द सेपरेट जॉइंट्स। ठीक है, क्लियर? सो ऑन कंसीडरिंग दिस, आपको ये पॉइंट्स कंसीडर करते हुए, दिमाग में कंसीडर करते हुए आपको सेक्शन कट करना होगा। ओके, so let's move to some question. You will have some clarity. Okay, this is our first question of the method of section. Okay, so in this we have to find, देखो पहली बात, जब भी हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका, जब भी आप सेक्शन कट करने वाले हो तो उससे पहले ये फोकस में देखो कि आपको कहाँ फोर्स निकालना है, किस मेंबर में फोर्स निकालना है। क्योंकि जिस मेंबर में फोर्स निकाला डेफिनेटली वो आपका पार्ट होना चाहिए सेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है, कौन कौन से मेंबर्स में आपको फोर्स निकालना है? आपको फोर्स निकालना है बीसी, बीसी मेंबर में फोर्स निकालना है, राइट? आपको फोर्स निकालना है बीसी मेंबर में। नेक्स्ट इज बीई, आपको फोर्स निकालना है बीई मेंबर में। देन सीई, आपको फोर्स निकालना है सीई मेंबर। ठीक है, आपने करके देख लिया, आपको इन तीनों फोर्स चाहिए, और ये 3 ही मेंबर हैं, और 3 मेंबर कोई भी एक जॉइंट से पास नहीं हो रहे, तो आपके 3 आपकी दो जो लास्ट की 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्लस अगर मैं सेक्शन ये वाला ले लूं then it will break in 2 parts. First condition fulfill होगी। ठीक है, तो I can choose this section. So I can choose this section. मैं सेक्शन चूज कर सकता हूँ। ठीक है, once मैंने सेक्शन चूज कर लिया, let me copy it down. So let's cut the section. Now I have break the section. ठीक है, सेक्शन मैंने ब्रेक कर लिया। Now I do the naming कि कौन कौन से लोड लग रहे होंगे। Okay, I consider this as that is very dark. Yeah. F BC. This is F. It's getting very small. Let me separate it a little bit.
PE, and this one is CE, right? Okay. आप सेक्शन ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो. एज आई हैव डन द नेमिंग, ओके, सो आई टेक द लेफ्ट पोर्शन. ठीक है, लेफ्ट पोर्शन लेता हूं. अब देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा. पहला स्टेप मेरा क्या होगा. पहला स्टेप, क्योंकि मेरे में यहाँ पे सेक्शन में रिएक्शन आ रही है, सो आई हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन. मुझे रिएक्शन निकालनी पड़ेगी. ठीक है. अब रिएक्शन इस टुकड़े टुकड़े में नहीं निकालनी है आपको रिएक्शन ओवरऑल में निकालनी है. ठीक है, आपको रिएक्शन ओवरऑल में निकालनी है. लेट मी इरेज इज इट अप, और इसमें हम रिएक्शन निकाल देते हैं. ओके, ठीक है. तो पहले हमने ये देख लिया सेक्शन कौन सा काटना है. उसके बाद अगर हमारे इसमें पड़ रही है रिएक्शन, तो हम रिएक्शन निकालेंगे. ओके, तो लेट्स डू सम. ओके, आई होप ये आपने रिएक्शन निकाल के रखा होगा. आई थिंक वन ऑफ क्वेश्चन आई हैव गिवन लाइक दिस. तो लेट मी राइट डाउन द डायरेक्टली रिएक्शंस. हमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो आई हैव डन द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ दिस. किसी स्टूडेंट का ये डाउट, सर आपने रिएक्शन हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं लिया. नहीं, मैंने लिया है, बट वो जीरो आ रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस स्ट्रेस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी वजह से वो जीरो आएगा. ओके, सो दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जीरो. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने लिया नहीं. ओके, सो I have done the horizontal force zero. I have done the vertical force zero, which I get this equation RAV होगा. RAV plus RF equals 30. Then I applied the momentum at A is to be zero. So I got this equation from where I got the RF equals to 17, and I put the 17 in this value in this equation. So I got the RA equals to 30. Okay, so this, yeah, I think you can do this because I have explained this earlier in previous lectures. So okay, so we will move further. Right now, see, since we know this is RAV, and this equals to 13 kilonewton. Right now, what is purpose? What is our purpose is to calculate force BC, force in BC, force in BE, and force in CE. ओके, सो अब आपको क्या करना है. यहाँ पे वो रिएक्शन वाला बढ़ गई है, तो आपको उसमें इस पूरे को इक्विलिब्रियम मानते हुए कुछ भी आपको तीन चीज करनी है. सिंपल सी बात. आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो, और कहीं मोमेंटम लगा के देख लो. फ्री, नॉट मोमेंटम, मोमेंट लगा के देख लो. ओके, सो लेट्स डू द थिंग. लेट्स बैलेंस द वर्टिकल फोर्स. ठीक है, वर्टिकल फोर्स बैलेंस किया तो आपको क्या हो गया. ये आपका पॉजिटिव आया पड़ रहा है, तो 13 पॉजिटिव. देन यही एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, तो -10, और एक कंपोनेंट इसका है, और ये एंगल कितना होगा. दिस इज 4, दिस इज 4, तो एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा. ओके, दिस इज द 45 डिग्री. सो माइनस, बिकॉज डाउनवर्ड लग रहा है, ये माइनस FBE cos 45, राइट, इक्वल्स टू. ठीक है, यहां से आप निकालोगे तो FBE is come out to be 3 kilo. Okay, and what should be the direction? See, here we have taken all the direction to be tensile, so this come out to be positive, so this is the tensile, right? Right. I have applied the one equation. Second equation is horizontal force balance. So let's take this question to next page. So I have taken this to the next page. So we have calculated this force CE. Oh, sorry, not CE. We have calculated this BE. Okay. So our purpose now is to calculate CE. Okay. So let's do the second equation. Horizontal force 0. So horizontal force are force BC, let to be positive, plus FCE, let also be positive direction, and x direction, and this one BE, because sorry, BE is a sine component, so BE sine 45.
and these all are come out to be positive because the component of BE is also in the positive x direction. So all these are positive x direction. So all come out to be positive. Okay. So this I know. Let me write the value of B FBE. FBE, we know it is root 3 root 2. Okay, this I know. Okay, I got this equation. So let's move to next step because there is two unknown. Take momentum up the where we have to take moment 0. कहाँ मैं moment 0 देखो, if I do the moment 0 here, can I get the CE? देखो, अगर मैं यहाँ moment 0 कर दूं B पॉइंट पे, तो मैं क्या CE निकाल सकता हूँ? देखो एक पॉइंट, what I'm saying, if I take this point B, ओके, तो यहाँ से कौन कौन से फोर्सेस होंगे जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? देखो ये फोर्स नहीं होगा, फोर्स बी नहीं होगा, फोर्स बीसी नहीं होगा, बिकॉज वो सेम पॉइंट पे लग रहे हैं. फिर दिस फोर्स आर माउंटिंग ऑन द सेम पॉइंट. बताया था मैंने आपको, ठीक है. सो द मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन एंड दिस बिकॉज ऑफ सी. तो यहाँ से डायरेक्टली आपको सी मिल जाएगा. सो लेट्स टेक द मूवमेंट एट बी जीरो. ठीक है. सो आर ए वी into the perpendicular distance in the direction of this force applied. ये पॉइंट है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी 3 होगी. 3. व्हाट इज द साइंस? साइंस क्या होगा यहाँ पे? साइंस इज इसके ऊपर अबाउट है, तो ये साइंस होगा. दिस इज द क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव. ठीक है. then CE is having the sense opposite, anti-clockwise, I take positive. So FCE into the perpendicular distance. Distance is 4. Perpendicular distance is 4. Goes to this. This is 13 into 3 minus goes to minus of FCE equals to into 4. So from here FCE is come out to be 13 into 3 is 39 by 4 kilometer. Okay, as this come out to be positive, so this will be the having tensile direction. Do you mean by default जो direction लिखी है वो tensile है. ठीक है. So once I get this, I put the value, this value FCE in equation above. So you will get this BC. Okay, FBC you will get, and you will get FBC. Let me write the answer. FBC आपको मिलेगा, and it come out to be compressor. It come out to be minus 51 by 4 kilo. Okay. If this is negative, then I say this is tensile direction. अगर मैं नेगेटिव हटा लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन डायरेक्शन हो जाएगा. ठीक है. क्लियर? समझ में आ गया? ओके. सो आई होप ये आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो. एंड इन सम क्वेश्चन ट्रस्ट मी इज वेरी वेरी इजी टू सॉल्व. अगर आपको एक सेक्शन ये लग रहा है तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी होने वाला है आफ्टर अप्लाइंग दिस मेथड. Okay, so let's move to next question. So this is our next question. I think you have seen this question in the last lecture. We have done this question by using the method of joint. Now we will do this question by using the method of section. Let's see how fast we can do this. See, the same thing you have to calculate in this. That is the force in SQ. You have to find the force in SQ member. Right? Same. आपको इस member में आपको फोर्स निकालना है. राइट. सो लेट्स सी कि मैं कौन कौन सा सेक्शन को कट कर सकता हूँ. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन ये थी कि 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए. सेकंड कंडीशन ये थी कि आप जो भी काट रहे हो तो 3 मेंबर से ऊपर नहीं होने चाहिए. ठीक है. और थर्ड कंडीशन ये थी कि अब सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो एक पॉइंट पास होने नहीं चाहिए. ठीक है. सो कंसिडरेशन दिस ऑल 3 कंडीशन इन आवर माइंड एंड लेट्स सी कौन कौन सेक्शन में कट कर सकता हूँ, कौन कौन से मेंबर में कट कर सकता हूँ. ओके. सो लेट्स सी. मैं यहाँ से ये वाला पार्ट निकला तो ये मेंबर तो डेफिनेटली होना चाहिए. अगर ये मेंबर डेफिनेटली होगा तो या तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ पूरी तरीके से, या फिर मैं ऐसे काट सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ. देखो अब मैं इसको अगर ऐसे लेता हूँ तो एफ पी एस एस क्यू क्यू टी एंड आपका क्यू आर, ये 4 मेंबर पड़ रहे हैं. ठीक है. ऐसे ही 4 मेंबर पड़ रहे हैं जब मैं आपको हॉरिजॉन्टली काटूंगा इसमें. ठीक है. अगर मैं इसको काटता हूँ इस टाइप से
तो आपको कितने मेंबर पड़ रहे हैं? 3 मेंबर पड़ रहे हैं। अब देखो क्या 3 मेंबर एक ही जॉइंट से पास हो रहे हैं? नहीं, ये इन दोनों के मेंबर जो जॉइंट है वो P और Q है, यहाँ पर S और Q है, अलग अलग हो गया, S और Q है, और यहाँ पर जो है S और T है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं इस सेक्शन को ले सकता हूँ, तो मैंने इस सेक्शन को लिया। एंड लेट्स प्रोसीड आफ्टर कटिंग दिस सेक्शन। लेट मी कट दिस सेक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ वी विल कट द सेक्शन। So let me erase this to have the clarity. So I have moved the section apart. Let's name the forces here. ये कौन सा फोर्स होगा? ये फोर्स है F P Q। ये फोर्स होगा S Q, जो कि हमें निकालना है। ये फोर्स होगा F S T, राइट। और मैं सारे के सारे फोर्स टेंसाइल लिए। अब देखो क्या, अब मैंने ये सेक्शन लिया, मैंने ये सेक्शन कंसिडर किया, क्या मुझे इसमें जरूरत पड़ रही है कि मैं इस रिएक्शन निकालूं? वाई? नहीं पड़ रही ना। वाई? बिकॉज जो रिएक्शंस हैं वो इस सेक्शन में है, राइट वाले में। लेफ्ट वाले सेक्शन में रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो अपने काम को हल्का करने के लिए मैंने स्पेशली लेफ्ट वाला पोर्शन लिया, क्योंकि अगर मैं राइट वाला पोर्शन कैसे करूंगा तो पहले को क्या करना पड़ेगा, पहले को रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद प्रोसीड करूंगा, राइट। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टू हैव द इजी टास्क, ठीक है, कम मेहनत करने के लिए आपको कौन सा सेक्शन आपको लेना है या आपको भी देखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड बाय टेकिंग द लेफ्ट सेक्शन ऑफ द दिस A11 सेक्शन। ये आप जो सेक्शन काटते हो यहाँ पर ये 1-1 जरूर मेंशन करें, बिकॉज दिस इज सेक्शन 1-1। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट व्हिच वी हैव टेकन लेफ्ट ऑफ दिस सेक्शन। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। करना क्या, सिंपल, आपको वर्टिकल फोर्स बैलेंस करने हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करने हैं, और क्या करना है आपको, मोमेंट किसी भी अबाउट पे जीरो करो, पॉइंट पे जीरो करो, और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी हाउ विल डू दिस। ओके, सो हियर वी कैन सी दिस, वी हैव टू फाइंड द फोर्स F SQ, एंड दिस इज द वर्टिकल फोर्स, जो लोड लग रहा है वर्टिकल है। और अगर मैं देखूं कि F S Q का जो मैं कंपोनेंट लूं, वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूं, सो इट विल बी द ओनली फोर्स विल कैन सपोर्ट दिस लोड। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, लेट्स डू द वर्टिकल फोर्स टू बी 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन से है? एक तो 9 लग रहा है, 9 किलोन्यूटन डाउनवर्ड, सो आई टेकन इट नेगेटिव, प्लस कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट। ओके, लेट मी ड्रॉ द कंपोनेंट। इसका जो कंपोनेंट होगा दिस वन, ठीक है, वो मैं लूंगा। और इसका कंपोनेंट का जो कंपोनेंट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी इस कंपोनेंट की? दिस कंपोनेंट हैव द वैल्यू F S Q। कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट होगा। तो साइन की वैल्यू बताता हूँ क्या आपको, हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में साइन की वैल्यू क्या थी। सो F Q S साइन थीटा इक्वल्स टू 0। कोई और भाई वर्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ से सिंपली आप एक ही स्टेप के अंदर F S Q निकल के आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 9 बाय साइन थीटा। एंड थीटा कहाँ से निकालेंगे? थीटा कैसे निकालेंगे बताया था मैंने, ये वैल्यू भी याद कर सकते हैं। दिस थीटा वैल्यू, बिकॉज दिस यू टेक द tan थीटा, it's come out to be 2 by 1.5, sorry for this, 1.5, and this will be tan theta equals to 4 by 3, and this value, or here you can see that sin theta is 4 by 5। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये पुट कर दो 4 by 5, बिकॉज बार बार इसको बताना कि आपको वैल्यू याद करना है। सब तो यू यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसकी, जो इससे आती है वो आती है आपके 53। ठीक है, चलिए एंगल की वैल्यू, तो वी गॉट दिस आंसर इन सिंगल स्टेप। अब देखो ये टेंसाइल कंप्रेशन होगा, वो भी देख लेते हैं। हमने जो अज्यूम किया डायरेक्शन को टेंसाइल अज्यूम किया था, ठीक है, वी हैव टेकन दिस टेंसाइल, और ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सो दिस आंसर इज, दिस फोर्स इज हैविंग द टेंसाइल नेचर, राइट। तो आपने अभी देखा कि अगर हम इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ जॉइंट से कट, मतलब आप सेक्शन से किया तो बहुत इजी पड़ा,
और मेथड ऑफ जॉइंट से किया तो क्या करा था हमने इसको लेमनीज से किया था, यहाँ पर लगाया था लेमनीज पी पॉइंट पे, फिर एस पॉइंट पे लेमनीज लगाया था, याद है। और हमारा ये आंसर थोड़ा मतलब कंपेयर टू दिस मेथड ऑफ सेक्शन से ज्यादा टाइम लगा था। ओके, सो लेट्स सी, एंड बिफोर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन we will see what is the advantage of method of joint. So we have already seen this advantage that the force in intermediate member can be find directly. इंटरमीडिएट मींस जो भी बीच में पढ़ रहा हूं मेंबर, ठीक है, हमने कोई भी बीच में मेंबर पढ़ रहा है उसको डायरेक्टली हमने फोर्स निकाल लिया, ठीक है। सो द फोर्स इन एनी इंटरमीडिएट मेंबर कैन बी फाउंड डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग द फोर्स इन एनी अदर मेंबर एडजेसेंट टू इट, ठीक है। अब देख लो, यहीं पे देख लो कि आसपास के फोर्स निकाल के नहीं निकाले हमने, इसमें डायरेक्टली हमने इंटरमीडिएट जो बीच में मेंबर पढ़ा उसमें फोर्स निकाल लिया विदाउट कैलकुलेटिंग द फोर्स इन एसटी में क्या फोर्स नहीं निकाला, और हमने ये भी नहीं निकाला कि पी क्यू में क्या था या पीएस में क्या था, हमने डायरेक्टली उसको हिट करा और निकाल लिया। So this is the advantage of this method of section. I hope you understand this. Okay, so let's move to next question. So this is our third question, and in this question you have to calculate force in AC member. This is the AC member. You have to calculate the force in AC member. You have to calculate this. Okay, the force in AC member you have to calculate. So let's see how we will take the section. First condition is दो पार्ट पर डिवाइड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि 3 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। थर्ड ये है कि आपका कोई भी सेक्शन जो आप काटोगे वो एक पॉइंट से पास, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हमें एसी में चाहिए तो ये तो डेफिनेटली है कि ये मेंबर में आना चाहिए, जो आपका सेक्शन है जो आपको मेंबर्स कट करने हैं उसमें ये डेफिनेटली लाइक करना चाहिए। तो यानी या तो मैं ऐसे काटूं उसको, ठीक है, या फिर मैं ए सी बी सी ई सी एंड ए डी ये काटूं, यहाँ पे 4 में पड़ गए, और ऐसे ही बीई बी सी ए सी ए डी अगर मैं काटता हूं तो यहाँ भी 4 में पड़ गए। ओके, इफ आई कट ए बी ए सी एंड सी डी तो यहाँ पे 3 में पड़ रहे हैं। सो आई विल गो दिस, हमने इसको ऐसे काटा, ठीक है, दिस माय 1:1 सेक्शन, ठीक है। अब इसको पेस्ट करके और मैं इसको कट करके आपको शो करता हूँ। सो आई हैव कट दिस सेक्शन, सो लेट्स मार्क द फोर्सेस। अच्छा हाँ, अब देखो मैं कौन सा कंसिडर करूँ, बॉटम वन या टॉप वन। अगर मैं बॉटम रिएक्शन देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, राइट, यहाँ पे मेरे को रिएक्शन निकालनी पड़ेगी इस केस में, मतलब पूरा कंसिडर करके यहाँ पे रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। बट अगर मैं टॉप वाला पोर्शन कंसिडर कर लूंगा तो वहां पर मुझे रिएक्शन नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टॉप वाले सेक्शन में रिएक्शन है ही नहीं, तो काम ही नहीं आने वाला। तो आई विल कंसिडर द टॉप पोर्शन। सो लेट्स नेम द टॉप पोर्शन फोर्सेस, ये आपके मेंबर्स हैं। दिस इज एफ बी ए, दिस वन इज एफ सी ए, दिस वन इज एफ सी डी। क्लियर? सो मैंने ऊपर वाला पोर्शन लिया just in order to omit the calculation for the reaction, ठीक है, उससे बचने के लिए मैंने इसको किया। Okay, so let's move further to solve this. मुझे what I have to do, I have to calculate the force AC, यानी CA पे आपको जो फोर्स है वो भी AC के अंदर होगा, तो मैं ये निकाला। My priority is this. ये कैसे निकल पाएगा? सिंपली अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर लोगे आपका निकल आएगा। सो फर्स्ट स्टेप, horizontal force in this equals 0. Horizontal force क्या है आपका 200 पड़ रहा है in positive x direction, right? And this FCA is going towards the negative x direction. So I'll take this negative FCA component of FCA along BC. वो क्या होगा? Because देखो यहाँ पर ये 1 mm है, ये 1 mm है. That means this angle is 45 degree. क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो 45 डिग्री एंगल हो गया। एंड दिस विल द कॉस कंपोनेंट, सो कॉस 45 ऑफ CA विल बी दिस कंपोनेंट, राइट। सो दिस टू बी 0, डायरेक्टली हमें यहाँ पे मालूम पड़ गया FCA इक्वल्स टू 200 अपॉन cos 45, दैट मीन्स 200 रूट 2, 200 रूट 2 किलो। And is it tensile or compression?
कंप्रेशन है या टेंसाइल है? हमने टेंसाइल ही अज्यूम किया था, पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस ये कैसा है, ये है टेंसाइल। आई होप कि ये मेथड आपको बहुत इजी लग रहा होगा, एंड इट इज इजी। ओके, सो बाय जस्ट हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन फॉर द मेथड ऑफ सेक्शन। So in this we have to calculate the force in BD member में force निकालना है, ठीक है। So first thing, section क्या हो गया, सेक्शन में ये मेंबर आपका डेफिनेटली आना है, BD मेंबर डेफिनेटली आना है। So या तो मैं इसको EF, ED, BD, BC, AC ये लेते हुए या तो मैं ऐसे काटूं, ठीक है, या फिर मैं इसको AD, BC, BD, AD एंड F उसको लेके ऐसे काटूं या फिर ऊपर ले जाऊं, ठीक है। बट इसमें 1 2 3 4 5 मेंबर आ रहे हैं, ताकि वो बहुत वर्स हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे काटूं डायगोनली, BE, BD एंड BC आ रहा हो इस टाइप से। तो यहाँ पर देखो 3 मेंबर आ रहे हैं, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 सेक्शन में, और यहाँ पर कोई भी मतलब जो मेंबर है वो सिर्फ एक पॉइंट से पास नहीं हो रहे, तो हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो लेट्स टेक दिस पोर्शन, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ मैं कौन सा लूं, टॉप मोस्ट सेक्शन लूं या बॉटम मोस्ट सेक्शन लूं? व्हाट इज माय प्रायोरिटी? माय प्रायोरिटी टू कैलकुलेट द फोर्स BD, और फोर्स BD मुझे दिख रहा है, डायरेक्टली निकाल सकता हूं इफ आई टेक द सेक्शन टॉप वन, ठीक है। तो टॉप वन में सेक्शन लिया, लेट मी पेस्ट दिस एंड कॉपी इट डाउन। नाउ लेट मी इरेज दिस, आई हैव डन द इरेजिंग पार्ट। अब इसको नेमिंग करते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर वाला पार्ट कंसीडर किया। दिस फोर्स इज F E B, I hope you can see this. Okay, this is F D B and this force is F D C. अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये कंफ्यूज मत करना कि सर आपने FCA निकाला है, FAC पूछा था। बेटा FCA इज सेम एज FCE, ठीक है, सेम है, और टेंसाइल भी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी सेम, अगर मैं टेंसाइल लूंगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लूंगा, तो ये हो गया आपका FAC, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट मत करना। ओके, नाउ आई हैव डन द नेमिंग हियर। सो ऊपर वाला पार्ट लिया, और आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है। सो लेट्स डू डायरेक्टली द हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ओके ओके, देयर इज नो वैल्यू गिवन, ओके, this is 10 kilonewton and this is 10 kilonewton. Okay, so 10 minus F B, sorry, BB equals 0, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आपको निकाल, सॉरी, यहाँ से डायरेक्टली आपको निकालेगा फोर्स BB equals to 10 kilonewton, ऐसे यहाँ से। सॉरी ये फोर्स आपको पहले नहीं दे पाया, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। डायरेक्टली मैंने इसको आंसर निकाल दिया, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मैथड ऑफ सेक्शन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स इन मेंबर A B. So these are the naming of the points of these structure. So in this you can see we have to find the force in AB member. So this is the AB member. Okay, so we have to consider this member in our section. So let's see what second can I take. अगर मुझे कंपल्सरी लेना है, that means मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये मेंबर, ये मेंबर, यहाँ 4 मेंबर हो गए। अगर मैं ये मेंबर, यानी 4 हो गए, 2 में डिवाइड होना चाहिए, तो इसलिए पूरा काटना पड़ेगा। अगर मैं इस मेंबर को AB, BL, JK एंड I, यानी यहाँ भी 4 हो रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ये सिंगल पॉइंट हो जाएगा। इफ आई टेक AB, BL, KL, ML, सॉरी KM, अगर मैं सेक्शन लेता हूं, बोलो कि सर ये तो 4 हो गए,
बट कोई बात नहीं, यहाँ पर एक चीज है, मैंने ये सेक्शन लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं सेक्शन लिया, पहले मैं इसको एक बार फोर्स लिख ले रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर ये 4 सेक्शन होते हुए कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही। ओके, सो लेट मी पेस्ट एंड इरेज दिस थिंग। मैंने कट करके इसको इरेज कर लिया। लेट्स डू द नेमिंग, क्योंकि मैं रिएक्शन वाला पार्ट कंसिडर नहीं करूंगा, आई कंसिडर द टॉप वन, ताकि मुझे रिएक्शन ना निकालनी पड़े। So here I have done the naming. Okay, this force is BA, this force is BL, this force is KL, this force is KM. Okay, in the members, the other forces. So let's discuss कि हमने जो 4 मेंबर लिए हैं, ठीक है, तो देखो पॉइंट्स में लिखा था प्रेफरेबली, पहली बात, ठीक है, हम 4 मेंबर ले सकते हैं, बट 4 मेंबर लेने से हमारी जो इक्वेशंस हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 3 है, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बढ़नी नहीं चाहिए, जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, अननोन इक्वेशन बना रहे हैं, वो 4 नहीं होनी चाहिए, 3 में ही काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अननोन फोर्सेस हैं, वो ठीक है, देख रहे हैं हम अननोन फोर्सेस है, बट ये दोनों एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोलिनियर है, ठीक है, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके मेंबर है कोलिनियर मेंबर है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेसी हो रही है। I'll shift this to okay. So let's try do this question. Simply मैं क्या करता हूँ, I'll take the, because I want, what is my purpose? Purpose is to calculate this force. Okay. So यहाँ पर let's see क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपको horizontal force बैलेंस करता हूँ, तो ये आपका अननोन है, ये आपका अननोन है, उसमें ठीक है, वर्टिकल करता हूँ तो ये आएगा और ये आएगा पिक्चर में। Okay, if I take the momentum at K, okay, yeah, you see, if I take the momentum at K, if I take momentum at K, तो क्या होगा, देखो, sorry, if I take the moment, I'm sorry about this moment, I take the moment, if I take the moment at K, तो क्या होगा, the moment because of this force, ये वाले इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जीरो हो जाएगा, moment because of this force FKM, ये जीरो हो जाएगा। if I take the moment because of this FBL, देखो FBL क्या है, उसी पॉइंट पे जा रहा है, दैट मींस कोई भी वर्टिकल इसके पोजीशन वर्टिकल आपका डिस्टेंस नहीं होगा, दैट मींस वो जीरो होगा, ठीक है, इसी लाइन जो है इसी पॉइंट पे जाके मीट होने वाला है वो, ठीक है। सो इससे भी कोई भी मूवमेंट जनरेट नहीं होगा। मूवमेंट किससे आएगा, मूवमेंट आएगा आपका 40 वाले से एंड दिस FBA वाले से, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू, इफ आई टेक द मूवमेंट एट पॉइंट K, दैट शुड बी जीरो, then what are the equations, FBA, ठीक है, FBA, ओके, यहाँ पर ये सारी साइड्स इक्वल हैं, must we get this thing, this is 1 meter, this is 1 meter, this is 1 meter, this is 1 meter, okay, and this one is also 1 meter, this one is also 1 meter, this one is 2 meter, this one is 1 meter, this one is, okay, these are the dimensions, okay. So let's use this dimension। यहाँ पे कितना चाहिए होगा मेरे को, यहाँ पे ये 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, तो मुझे यहाँ पे निकालना है, और ये आपको पूरा गिवन है कितना है, 2 मीटर है, यहाँ पे निकालना होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स आई नीड 1 and 1 2, एंड फॉर दिस फोर्स आई नीड दिस, ओके। सो BA की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये है, दिस इज 2, सो BA into 2, जो सेंस आ रहा है, सेंस ऑफ दिस मूवमेंट, वो क्या होगा, दिस सेंस इज क्लॉकवाइज, सो आई टेक इज नेगेटिव, और इससे सेंस आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो आई टेक पॉजिटिव। 40 इनटू द वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी है, 1 + 1, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है, 1 + 1 2, सो आई टेक दिस 2, so 2 से 2 cancel, this FBA out to be 40 kilonewton directly, ठीक, क्लियर। यहाँ पर हमने 4 मेंबर को कट किया, ठीक है, बट उससे क्या देखा कि आपके 2 मेंबर जो है वो कोलिनियर है, ठीक है, 2 मेंबर कोलिनियर है, तो उससे हमारे पास लोड कम हो जाएगा, ठीक है, दैट मींस वी कैन कैलकुलेट द इक्वेशन, ठीक है। देखो इसमें मेरा एक सजेशन रहेगा कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाए, बट आप उसको एक बार अटेम्प्ट मार दो,
अटेंड मार दो, मैंने सेक्शन लिया उसको अटेंड मार के देखो, शायद हो सकता है क्लियर हो जाए, तुरंत निकल आया आंसर। ठीक है, दिस इज ओनली सजेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमने दोनों मेथड पढ़ लिए एंड कौन सा मेथड कहां पर जल्दी हमें आंसर दे पाएगा। ठीक है, सो टू हैव द क्लियरिटी ऑफ दिस, ये क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यहाँ पे आपका मेथड ऑफ सेक्शन लगाऊं जल्दी आंसर हो जाएगा, या फिर मेथड ऑफ जॉइंट लगाऊं। बिकॉज फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम यू नीड टू think like this and solve the question. Okay, so let's understand this by the next examples. So these are the two gate question. ठीक है, in this first question we have to calculate the force in member CD member में हमें force निकालना है, and in this question which is on the gate in gate 2004, यहाँ पे हमें force निकालना है in member LN में निकालना है, राइट। अब गौर से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहली बात हमें कहाँ निकालना है वो देखो, हमें निकालना है इस मेंबर के लिए। इस मेंबर को देखो, क्या आपको वो पॉइंट हिट नहीं करता जो मैंने आपको मेथड ऑफ जॉइंट में थर्ड पॉइंट लिखवाया था कि इफ ऑन अ जॉइंट थ्री मेंबर्स आर मीटिंग एंड टू मेंबर्स आर कोलिनियर then the force in third member is 0। ये पॉइंट था, वो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है एंड दिस कैन बी सॉल्व, डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है और आपको ये मालूम पड़ रहा है कि 0 है, आपने कौन सा मेथड लगा लिया, मेथड ऑफ जॉइंट लगा लिया। ठीक है, सो माय सजेशन इज पहले क्वेश्चन देखो कौन से मेंबर में लगाना है। ठीक है, कौन से मेंबर में हमें फोर्स निकालना है, उसके बाद देखो कि क्या कुछ चीज फिमिलर पड़ रही है हमारे से, अगर फिमिलर पड़ रही है तो तुरंत उसको अप्लाई कर लो। ठीक है, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है CD में। ठीक है, आई हैव टू कैलकुलेट द फोर्स इन मेंबर CD पे निकालना। क्या मैं ऐसे जॉइंट से उससे कर सकता हूँ, मेथड जॉइंट से कर सकता हूँ? अगर मेथड जॉइंट से करूंगा तो पहले तो मेरे को रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, रेशियो निकालनी पड़ेगी और फिर मेरे को रेशियो निकालने के बाद यहाँ पे पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मारूंगा, फिर इस पॉइंट पे आऊंगा। ठीक है, इतने में तो कहानी खत्म हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन लगाया और इसको काट दिया, यहाँ से 3 मेंबर है, किसी भी एक पॉइंट पे नहीं है सारे मेंबर। ठीक है, और सारे के सारे ये सारे हमने काटने के बाद पूरा का पूरा थ्रेस आपका 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, मैं ले सकता हूँ जैसे मैंने डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपने सिर्फ वर्टिकल फोर्स बैलेंस किया, आंसर आपके सामने। ठीक है, क्लियर? इसको भी आप करके देख लेना एंड यू विल फाइंड हियर आल्सो द आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि आप जो रेशियो निकालोगे, बिकॉज सिमेट्री मैं देखता हूँ यहाँ पे 1 किलोन्यूटन तो ये सॉरी जो रिएक्शन आने वाली है इट विल कम आउट टू बी 1 किलोन्यूटन। सॉरी दिस, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो 1 किलोन्यूटन आएगी, कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी बिकॉज यहाँ पे कोई भी फ्रेम है, कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, ये 1 किलोन्यूटन है। यहाँ पे आपने वर्टिकल फोर्स बैलेंस किया क्योंकि यहाँ पे ये जो फोर्स मिलेगा यहाँ पर एक ये और एक ये। ठीक है, दैट मीन्स ये इससे बैलेंस होना चाहिए। आपने इक्वेशन लिखोगे 1 ये नेगेटिव में, सॉरी ये पॉजिटिव में, ये 1 बॉटम में और इसका कंपोनेंट पॉजिटिव में, यानी कंपोनेंट ऑफ FCD। और ये एंगल कितना होगा, 45 होगा बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो cos 45 तो 0, 1 से 1 0, यानी आपका CD जो निकल के आ गया, जो निकल के आ गया, हिट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि तुरंत मैं किससे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मेथड सेक्शन से भी कर सकता था, यहाँ पे मैं इसको काट देता यहाँ पे ऐसे, या आपको मेथड सेक्शन से भी हो जाता है पूरा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। बट मेरे को वो 3 पॉइंट याद है, वो 4 पॉइंट याद है, उससे तुरंत मेरे को हिट कर रहा है कि नहीं ये डायरेक्टली हो सकता है, तो मैं क्यों ना उससे डायरेक्टली करूँ मेथड ऑफ जॉइंट से, राइट। तो यू हैव टू डू द लॉट ऑफ प्रैक्टिस ताकि आपको क्वेश्चन देखते हिट होना चाहिए कि क्या मैं अप्लाई करूं, कहां मैं अप्लाई करूं, कैसे मैं अप्लाई करूं, राइट। दिस इज ओनली कम विद प्रैक्टिस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। So that's it for today. We have completed the plane of truss. In next lecture, hopefully we will start the principle of virtual work done. Okay, so that's it for today. Goodbye.